We are so thankful unto the Lord for this one more day the Lord has graciously added unto our lives. प्रभु का हम बहुत धन्यवाद देते हैं कि एक और दिन प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है। Yesterday, as you know, we have started this convocation. कल के दिन जैसे कि आपको पता है कि हमने इस महासभा का आरंभ किया। We are so thankful to the Lord for this regular meetings because the word of God says in Hebrews 10:25. हम बहुत धन्यवादी हैं इस समय के लिए क्योंकि जैसे प्रभु का वचन इब्रानी 10 और उसका 25 में कहता है, Yes, the day of the Lord is approaching. जैसे जैसे परमेश्वर का दिन निकट आता है, And it is always good to assemble together like this for our own edification. तो ये बहुत जरूरी है और बहुत ही भला है कि हम अपने उस उभारे जाने के लिए हम लगातार इस प्रकार इकट्ठे हों। Today many people are telling after Corona, और आज बहुत सारे लोग कोरोना के बाद यूं कहते हैं, they are sitting in their houses and they are seeing the messages on YouTube. अपने अपने घरों में बैठ करके YouTube में वो संदेशों को सुन रहे हैं। Yeah, some of the people they cannot come, बहुत सारे लोग तो कुछ लोग तो नहीं आ पाते हैं, but some people they can come to the assembly. Even then they are sitting in their houses. लेकिन जो लोग कलीसिया में आ सकते हैं वो लोग भी घर के अंदर बैठ करके वचन सुन रहे हैं। Anyhow, we are hearing the message over YouTube. जो भी है हम संदेश तो YouTube के द्वारा सुन रहे हैं। And if you ask them why you are not coming to the house of God, और यदि आप उनसे पूछे कि आप प्रभु के घर में क्यों नहीं आते, anyhow God is there in our house. तो अरे परमेश्वर तो हमारे घर में भी मौजूद है। And also the message is also being broadcasted over YouTube. और वही संदेश YouTube में भी ब्रॉडकास्ट हो रहा है। So we can see from our houses. तो हम अपने घरों से तो देख सकते हैं, But Bible says it is not right. लेकिन बाइबल क्या बताती है, ये सही नहीं है। If you can come to the house of God, you have to come to the house of God. यदि आप परमेश्वर के भवन में आने में सक्षम है, आ सकते हैं, तो आपको प्रभु का भवन आना चाहिए। Suppose if you are having duty, or if you are not well, or if you are too old, then you can see like that. यदि आप का कोई काम है, दफ्तर है, या आप बहुत बुजुर्ग हैं, तब आपके लिए कोई बात नहीं। The same God who said, I mean, see, you are telling, you know, I can see the message from my house. The same God who told you, I will not leave you nor forsake you, but He is also telling, not forsaking the assembling of saints. तो आप यूं कह रहे हैं कि आप अपने घर पे बैठ करके वो संदेश को सुन रहे हैं और परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, तो वही परमेश्वर आपसे यूं भी कह रहा है कि यूं इकट्ठा होना भी ना छोड़ें। God said, I will not leave you. परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं। No doubt God is there in your house. इसमें कोई शक नहीं है कि आपके घर में परमेश्वर की उपस्थिति है। But the same God who wants to be with you in your house, He only said, not forsaking the assembling of saints. लेकिन वही परमेश्वर जो आपके घर में वास करता है, वही परमेश्वर आपसे यूं कह रहा है कि इकट्ठा होना ना छोड़ो। Here when we come, we can exhort one another. जब हम इस प्रकार से एक दूसरे के साथ मिलते हैं, इकट्ठा होते हैं, हम एक दूसरे को उभारते हैं। And moreover, see, as the day of the Lord is approaching, we have to gather as many times as possible. और इससे बढ़ करके जैसे कि परमेश्वर का दिन निकट आ रहा है, हमें और भी अधिक ये कार्य को करना है। So I humbly request those dear ones who are staying in their houses and seeing over YouTube, if you can come to the house of God. तो मैं बड़ी विनम्रता से निवेदन करता हूँ उन लोगों के लिए जो घरों में बैठ करके YouTube में ये संदेश को सुन रहे हैं, यदि वो आ सकते हैं तो भवन में जरूर आए। We all know about Israelites. हम सब इस्राएलियों के बारे में जानते हैं। Yeah, God has kept last time also I told 7 festivals for them. हमने पिछली बार भी भाई ने बताया कि किस प्रकार से 7 प्रकार के पर्व परमेश्वर ने उनके लिए रखा। The Lord is there in their houses. परमेश्वर उनके घरों में है। But the same God asked them to come to Jerusalem for the 7 festivals in a year. लेकिन वही परमेश्वर उनसे कहा अपने अपने घरों को छोड़ करके यरूशलेम में आ जाओ और वहां पर उन 7 पर्वों को मनाओ। At least for 3 times. और कम से कम साल में 3 बार। Yeah, they can have fellowship with one another. कि एक दूसरे के साथ इकट्ठे हों और संगति करें। Christian life
Not only hearing the word of God, apostles' doctrine, immediately the Lord says fellowship. और मसीह जीवन ना केवल प्रेरितों की शिक्षा पाना है और वचन को सुनना है, लेकिन तुरंत प्रभु यूं कहता है कि संगति भी रखना है। Many of you are educated people, बहुत सारे आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, and many of you know about Elon Musk, isn't it? और आप में से हर एक लोग एलन मस्क को जानते हैं, He is a very intelligent man. और वो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है, Almost he is the richest man, we can say. और आज के दिनों में तकरीबन सबसे धनी व्यक्ति वो है, He is hiring, giving on hire even the rockets. और वो इतना धनी है कि वो अपने रॉकेट्स को भी किराए में डालता है। And you all know the Tesla cars and all these things. और इन टेस्ला कारों के बारे में जो बिना ड्राइवर के चलती हैं, सारी चीजें आपको पता है। And how much investment he has made in the energy sector. और उसने ऊर्जा के क्षेत्र में कितना बड़ा निवेश किया है, आपको ये पता है। Last week he has released one video. पिछले हफ्ता उसने एक वीडियो निकाला, Do you know what he said? आपको पता है उसने क्या कहा? I have sent that video to many people and I have kept in my WhatsApp also. मैंने बहुत सारे लोगों को वो वीडियो भेजा और अपने व्हाट्सएप में भी मैंने उसको रखा है। Elon Musk, the richest man almost, he told like this. और एलन मस्क जो सबसे धनी व्यक्ति है, वो इस प्रकार से कहा। 20-25 minutes video it is. 20-25 मिनट का वो वीडियो है, And he told that after 30 years, I started attending the church last week. उसने कहा कि 30 साल के बाद पिछले हफ्ते से मैं चर्च जाना शुरू किया हूँ। Very intelligent man. बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति, Very rich man. बहुत ही धनी व्यक्ति You है। all know after Mr. Donald Trump has become the president of America in the second time, आपको सब he sent the rocket to the moon and brought Sunita Williams and others to the earth. आपको सबको पता है, जब दूसरे सत्र में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति बना, एलन मस्क ने सुनीता विलियम्स को वापस लाने के लिए अपना खुद का निजी रॉकेट उसने भेजा। Is it easy? क्या ये आसान काम है? Sending a rocket from earth to moon and seeing that those two astronauts transferring themselves from the existing old rocket to the new rocket and coming back to India क्या आप and इसकी coming back to the earth. क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं कि एक पृथ्वी से एक रॉकेट भेजा गया अंतरिक्ष पे, और अंतरिक्ष में जहाँ पे पुराने विमान पे वो फंसे हुए थे, उसमें से उन दोनों को निकाल करके वो रॉकेट वापस पृथ्वी पर आ गया सकुशल। And he said, और उसने ये कहा, after 30 years I started going to the church last week. 30 साल के बाद मैं फिर से प्रभु के घर चर्च जाना शुरू कर दिया। Do you know why? आपको पता है क्यों? And those 25 minutes, 30 minutes video he explained. उसने इस बात को 20-25 समय के वीडियो में उसने ये बात को बताया। We have invented so many things. हमने बहुत सारी चीजों का आविष्कार किया है। And I know about computers. मैं कंप्यूटर के बारे में जानता I know हूँ, about internet and all these मैं things. इस इंटरनेट के बारे में सब बारे में जानता हूँ। All these things made the people as groups. ये सारी चीजें लोगों को अलग अलग समूह में बांट दिया है। If you are a computer personnel, if you want to talk about computer, other people who knew about computer, they only can understand, and those young people will be as a group. यदि आप कंप्यूटर के ज्ञाता है, तो आप जब कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं, तो कुछ लोग, जो लोग कंप्यूटर को समझते हैं, केवल वही उस बात को समझ पाएंगे और बाकी के लोग नहीं समझ पाएंगे। So the scientific advancements are making the people as groups of different ages. तो ये वैज्ञानिक विस्तार जो हो रहा है, जो आविष्कार हो रहा है, वो लोगों को अलग अलग समूह में बांट रहा है। But what he said, you know, लेकिन उसने क्या कहा पता है? in the house of God it is not like that. परमेश्वर के घर में कोई बंटवारा नहीं है, कोई अलग अलग समूह नहीं है। If you are a computer expert, यदि you आप can talk to another computer expert, that's all. यदि आप कंप्यूटर के ज्ञाता है, तो आप दूसरे कंप्यूटर के ज्ञाता से ही बात कर सकते हैं। And if you are a physics scientist, you can talk to another physics scientist. Others cannot understand what you are talking. यदि आप भौतिक विज्ञान के साइंटिस्ट हैं, तो आप केवल उन्हीं लोगों से बात कर सकते हैं जो भौतिकी को समझते हैं। But what about the house of God? लेकिन परमेश्वर के भवन के बारे में क्या? A 20-year-old boy is talking to 80-year-old man. और 20 साल का बच्चा 60 साल 60 क्या है 80 साल का
उनसे बात कर पाए। Ah. 20 साल का बच्चा भी 80 साल के व्यक्ति से बात कर सकता है। And even a young girl can talk and share her difficulties with a very old woman of 90 और years. एक छोटी जवान बच्ची जो है एक बुजुर्ग 90 साल की बहन से भी अपनी समस्याओं को अपने बातों को बता सकती A है। Sunday school student can talk to a big woman. और संडे स्कूल के बच्चे बड़ी स्त्रियों से भी बात कर सकते हैं। All these differences are rooted out in the fellowship of God's people. परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के घर के अंदर ये सारी विभिन्नताएं जड़ से उखाड़ दी जाती हैं। So what he said, you know, और उसने क्या कहा आपको पता our है? inventions have segregated the people into groups, हम- but the fellowship is integrating all the people into one group. So हमारे आविष्कार जो है लोगों को अलग अलग समूह में बांट दिए हैं, लेकिन परमेश्वर की संगति उन सब लोगों को एक जगह जोड़ दिया है। That's why I want to go there. और इसलिए मैं वहां जाना चाहता हूँ। Fellowship, he recognized the importance of fellowship. उस बड़े व्यक्ति ने, धनी व्यक्ति ने, वैज्ञानिक ने इस संगति के महत्व को समझा। Yeah, he has seen the poor man talking to a rich man, both together are praying. और आप देखते हैं कि एक गरीब व्यक्ति एक धनी व्यक्ति के साथ बात कर रहा है, वो दोनों एक साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे And a young boy is talking to a old man, both are praying हैं। together. और एक छोटा बच्चा एक बुजुर्ग व्यक्ति से बात कर रहा है और दोनों साथ प्रार्थना कर रहे हैं। Fellowship will bring the people together and it will make us as one body. संगति लोगों को एक साथ इकट्ठा करता है और हमें एक देह बनाता है। What all our scientific advancements could not do, the fellowship has done. जो हमारे वैज्ञानिक आविष्कारों ने नहीं कर पाया, ये एक संगति ने इसको करके दिखाया। So I will go to the house of God regularly. What science could not do, the church did. तो एलन मस्क ने कहा जो आविष्कार जो साइंस ने विज्ञान ने काम को नहीं कर पाया, ये संगति करती है, चर्च करता है, इसलिए मैं वहां जाना चाहता If हूँ। you want to see in the YouTube, it is there in your free time, his testimony which he has given last week. और पिछले हफ्ता ही उसने ये टेस्टिमनी, ये गवाही दिया और YouTube में ये अवेलेबल है। When such people are telling like that, many of us we are sitting in our houses and we are telling YouTube में मैं देख रहे हैं। जबकि एलन मस्क जैसा व्यक्ति इस बात को कह रहा है कि मसीह की संगति, उसका भवन कितना महत्वपूर्ण है, हम लोग जो घर में बैठकर YouTube में संदेश सुन रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे। So if you can come to the house of God, never stay in your house, come to the house of God. What a wonderful fellowship we can enjoy with the head Lord Jesus Christ and with the other members of the body, the believers. तो यदि आप आ सकते हैं प्रभु के भवन में तो जरूर आए, क्योंकि जब आप प्रभु के भवन में आते हैं वो उसकी देह है और उसका सिर मसीह है, और ये सुंदर संगति का हम आनंद ले सकते Yeah, हैं। today all of you have come to this place. It is so nice. और बहुत ही सुंदर है कि आज सब कोई आप इस जगह पर आए हैं। Oh, some of you from Punjab, from UP, and even from Haryana and other places. पंजाब, यूपी, हरियाणा और दूसरे राज्यों से आए हैं। So what I am telling, it is for those people who have not come to this place. तो जो मैं ये बात बता रहा हूँ वो उन लोगों के लिए जो आ सकते हैं पर इस जगह पे नहीं आए। And the Hebrew writer is writing, yes, the day of the Lord is, approaching. Yes, we have to meet together like this as many times as possible. और जैसे इब्री का लेखक कहता है इब्रानी 10 और उसका 25 में कि जैसे जैसे उस दिन को आते देखो तुम उससे इकट्ठा होना ना छोड़ो। So anyhow, we thank God for this wonderful time. तो जो भी हो प्रभु का हम इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं। After the meeting starts, the rain will come. Before the meeting ends, the rain will stop. जब मीटिंग शुरू होगा बारिश आएगी और मीटिंग खत्म होने के पहले बारिश बंद हो जाएगी। खाना पड़ता। We have to take food, you know. तो खाना खाने के लिए बारिश बंद हो जाएगी। Yeah. Now we are going to see the theme verse that is from Hebrews chapter 11. So हम अब मुख्य वचन को देखने जा रहे हैं जो इब्रानी 11 और उसका 6 वचन है। All together, please. Verse 6. एक साथ मिलकर पढ़ लेंगे। 11:6 of Hebrews, all together in our own language. इब्रानी 11 अध्याय 6 वचन अपनी अपनी भाषा में जोर से पढ़ेंगे। और Without faith it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is the rewarder of the wicked. Without faith it is impossible to please Him. बिना विश्वास उसको प्रसन्न करना अनहोना है। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Loving Father, we thank Thee for this year's, O Lord, holy convocation. प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस साल के पवित्र महासभा के O लिए। Lord, every year Thou art giving us this privilege to gather like this in Thy name. प्रभु जी, हर एक साल आप हमें ये सौभाग्य देते हैं कि हम इस प्रकार से आपके नाम में
इकट्ठा हो सके। The dear one said, Mount Carmel, O Lord, having burden for the proclamation of the word of God, they are arranging these meetings with much sacrifice. प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं माउंट कार्मेल के भाइयों के लिए जिन्होंने बड़ी बलिदान करके इस सभा का आयोजन किया ताकि आपका नाम को सुनाया जा And सके। also sacrificing their time, their money, their energy, their comforts. Many people have come from very far and near places. और प्रभु जी बहुत सारे लोग पास और दूर जगह से अपने नींद को, अपने कंफर्ट को, अपने समय को निकालते हुए, खर्च करते हुए यहाँ पर आए हैं। Lord, having come to these meetings, help us to concentrate on Thy word. प्रभु जी जब हम इस सभा में आए हैं आपके वचन की ओर पूरी ध्यान एकत्र करने में सहायता As करें। it is written in Acts 2:42, next to apostles' doctrine, fellowship is very important. जैसा कि प्रेरितों का 2:42 में लिखा है कि प्रेरितों की शिक्षा के बाद संगति करना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। Having come to this place, O Lord, we may enjoy the fellowship with God and also God's people. और इस जगह में आने के द्वारा हम प्रभु के साथ और प्रभु के लोगों के साथ उस संगति का भरपूर आनंद ले सकें। Through all these spiritual exercises, we may be transformed into Thy likeness, little by little and day by day. और इस आत्मिक अभ्यास के द्वारा हम अपने स्वभाव में अपने उस परमेश्वर की छवि में अंश करके धीरे धीरे दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं। Lord, this morning as we are meditating Thy word, as we open Thy scriptures, open Thou Thy mouth and speak to us. प्रभु जी आज की सुबह जब हमने आपके वचन को खोला है प्रभु जी आप भी अपने मुख को खोलकर हमसे बात करें। O Lord, foolish as we are, unprofitable servants, both of us, we are standing before Thy precious people, blood-born children. प्रभु जी हम तो अयोग्य हैं, प्रभु हम तो मूर्ख हैं, हम दोनों को प्रभु जो आपके बहुमूल्य लोगों के सम्मुख खड़े होते हैं आप हमारी सहायता करेंगे। Lord, speak to us, speak through us. हमसे बात करें, हमारे द्वारा बात करें। Whether we are standing or sitting, we are all needy people. प्रभु जी चाहे हम खड़े होकर बोल रहे हो या हम सुन रहे हो बैठ करके हम सब साधारण लोग The हैं। Holy Spirit will minister the words of life according to our individual and corporate needs. हमारे व्यक्तिगत और सामूहिक जरूरतों के हिसाब से पवित्र आत्मा हम सबों से बात If करें। anybody is in any particular need, O Lord, meet that need by the ministration of the word of God. प्रभु जी यदि किसी की व्यक्तिगत जानकारी व्यक्तिगत नीड है उसको चाह है प्रभु आप उनके चाह को आप प्रभु उनसे बात करें। Something of eternal value we may receive from Thy loving hands. प्रभु कुछ न कुछ हम उस अनंत जीवन के मूल्य को बातों को आपके बहुमूल्य हाथ से प्रेमी हाथ से पा सके। If anybody is still coming, bring them quickly and also safely. यदि अभी भी कोई मार्ग में है आ रहे हैं प्रभु जी यातायात की सुविधा देकर सुरक्षित हमारे बीच में सुरक्षित जल लेकर आए। Bringing all of us under the sprinkling of Thy precious blood and expecting great things, ascribing all glory unto Thy holy name. We do pray in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. बड़ी बातों को हमारे बीच में होता हुआ देखना चाहते हैं और प्रभु जी और इस समय के लिए धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को हमारे प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य और सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन। If you see the context in which the letter to Hebrews is written, यदि आप देखें कि जिस संदर्भ में ये इब्रानी की पत्री लिखी हुई है there is an opinion, I mean difference of opinion regarding who wrote this epistle. यहाँ पे हर लोगों का अलग अलग तर्क है विचार है कि किसने इब्रानी की पुस्तक को लिखा। Some people say Paul has written this. कुछ लोग यूँ कहते हैं कि पौलुस ने इब्रानी को लिखा। Some people they will say Apollos have written it.